नमस्कार साथियों। इस सत्र में हमें जिनका सानिध्य मिलने वाला है वो है प्रोफेसर विवेक कुमार। एक बहुत जाना माना नाम एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल सर्कल का प्रोफेसर विवेक कुमार इज करेंटली प्रोफेसर एट C SSS at JNU. He is a well known sociologist and a public intellectual and a teacher activist who has consistently worked for the cause of marginalized sections and communities and consistently undertaken research and published on the issues concerning marginalized communities in India. His important publications include Caste and Democracy in India, Perspectives from Below, Dynamics of Change and Continuity in the Era of Globalization, India's Roaring Revolution, Dalit Assertion and New Horizons, and several other books and articles. Along with that, he has also conducted major research projects with various national and international collaborations all over the world. He has also delivered lectures and consistently appears on news channels as public intellectuals on the issues concerning Dalits and other marginalized communities in India. As academicians, we all are almost familiar with the kind of work Professor Vivek Kumar has been publishing and coming out with in the last 20-25 years. And I would, on behalf of Ramanujan College, welcome Professor Vivek Kumar and request him to deliver his lecture. Today, Professor Kumar is going to talk about methodological and epistemological concerns of Dr. B.R. Ambedkar. I think this is a very important topic because it structures Dr. Ambedkar's thought through the methodological vantage point, as which is very important in subjects like political science and sociology. So welcome, Professor Kumar. Thank you. Let me thank at the outset the organizers for giving me this opportunity to address students. They are, of course, teachers, but they're all here to learn something. And that's why we always think that we remain the student. So I have titled my lecture, the topic of my lecture is Methodology and Epistemology of Babasaheb Ambedkar's Thought and Philosophy. बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार एवं दर्शन की ज्ञान मीमांसा एवं पद्धति शास्त्र। सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं, व्हाट इज मेथोडोलॉजी एंड व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी, जिससे कि आसानी हो जाएगी। और आखिर यह टॉपिक बनाया क्यों गया, व्हाई दिस टॉपिक इज मेड और इवॉल्व्ड, इसके बारे में भी बातें क्लियर हो जाएंगी। ये जो लेक्चर है, वैसे all colleagues are there. This is the work for more than 25 years. I have worked, researched, I have written number of articles, I have written course material for IGNOU, and I have published also many articles in different journals and books. So बहुत पुराना साक्षात्कार है बाबा साहब अम्बेडकर के लेखन से। ये कोई नया टॉपिक नहीं है, लेकिन इसको जो है विश्वविद्यालय विधा के अंदर और कॉलेज में, यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोगों का जो बाबा साहब से साक्षात्कार है, उसमें कुछ भिन्नता होनी चाहिए। जैसे नेतागण कुछ होते हैं, या फिर एक्टिविस्ट लोग होते हैं, एनजीओ के लोग होते हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर को जिस प्रकार एनालाइज करते हैं, क्या विश्वविद्यालय विधा में या यूनिवर्सिटी
के रिसर्च स्कॉलर्स के बीच में, कॉलेज के रिसर्च स्कॉलर्स के बीच में कोई नई पद्धति या परिपाटी डाली जा सकती है, उसको लेकर के ये टॉपिक बनाया गया है। और पिछले 20 वर्षों का अनुभव इसमें शामिल है। तो साथियों, मेथोडोलॉजी, पद्धति शास्त्र जो है वह 3 बहुत बहुमूल्य प्रश्न पूछती है। और वो प्रश्न हैं, एक, पहला प्रश्न, मेथोडोलॉजी आपको बताती है कि सब्जेक्ट मैटर जो भी आप पढ़ रहे हैं, जिस चीज को भी पढ़ रहे हैं, उसकी विषय वस्तु किस प्रकार निर्मित हुई, how the subject matter was constituted, how the facts, उस विषय वस्तु के तथ्य किस प्रकार तथ्य बने, ये पहली बात जो है मेथोडोलॉजी बताती है। तो हम बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा किस प्रकार जो है अपनी विषय वस्तु बनाई गई, उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। दूसरी बात मेथोडोलॉजी जो बताती है वो ये बताती है कि इसके अंदर किस प्रकार के कॉन्सेप्ट्स और किस प्रकार के थियरीज और प्रोसीजर्स वो यूज किए गए हैं, जिससे कि जो ज्ञान की उत्पत्ति हुई है उसमें हमें सहायता मिल सके, उसको हम एनालाइज कर सके, कौन सा थियरी है, कौन सा पर्सपेक्टिव है, और कितने प्रकार के ज्ञान की बात कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। ये उनके पद्धति शास्त्र में आता है। और तीसरा, बाबा साहब अम्बेडकर का जो है ज्ञान का या लिमिट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, उसकी परिधि क्या है। ये हो गई मेथोडोलॉजी, पद्धति शास्त्र, किस प्रकार विषय वस्तु निर्मित होती है, उसके तथ्य बनते हैं, उसका आधार क्या है, और उसके बाद उसके अंदर कौन सी अवधारणाएं और कौन से सिद्धांत प्रयोग किए जाते हैं, और लास्ट में जो है उसकी परिधि क्या है, कहां तक वो जाता है, ये पद्धति बताती है। और इसके साथ साथ दूसरी एक चीज और मैं यूज कर रहा हूं, और वो है इपिस्टेमोलॉजी, यानी कि ज्ञान मीमांसा। इपिस्टेमोलॉजी answers also 3 very important questions. One, epistemology, tries to ask about nature and scope of the knowledge. What is the nature and scope? उसकी प्रकृति क्या है, और वो कहाँ तक जो है ज्ञान की बात करता है, उसकी जो ह्यूमन नॉलेज की जो इस प्रकृति है और नेचर है, वो उसको बताता है। सेकंड बात जो पद्धति शास्त्र बताती है कि व्हाट आर द प्रॉपर सोर्स एंड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज, अर्थात ज्ञान के स्रोत क्या हैं, उनका आधार क्या है। और तीसरा जो है वो क्वेश्चन बताता है क्राइटेरिया, साइंटिफिक क्राइटेरिया। साइंटिफिक क्राइटेरिया यानी कि वैज्ञानिक आधार पर उसके अंदर ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो अवैज्ञानिकता के आधार पर दूसरे ज्ञान को अलग करते हैं। ये 3 बातें इपिस्टेमोलॉजी भी बताती है। और इस प्रकार हम पद्धति शास्त्र और जो बाबा साहब अम्बेडकर की ज्ञान मीमांसा है, इससे जो है उनके दर्शन और उनके विचार को समझने का प्रयास करेंगे। अब तीसरा प्रश्न उठता है कि आखिर हमको फायदा क्या होगा, व्हाट विल बी द बेनिफिट, हम जो बेनिफिट है वो क्या होगा बाबा साहब अम्बेडकर के इस प्रकार के अगर हम उनका इस प्रकार अध्ययन कर रहे हैं तो इससे फायदा क्या होगा, व्हाट विल बी द बेनिफिट फॉर अस। तो साथियों, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर को अभी तक बड़ी संकुचित दृष्टि से देखा गया है, और कहीं कहीं तो संकुचित दृष्टि नहीं बल्कि उनको जो है बाबा साहब अम्बेडकर को जो है वो ब्लैकआउट कर दिया गया है, एकदम छुपा दिया गया है, उनका संज्ञान तक नहीं लिया गया है, और लिया भी गया है तो बहुत ही फौरी तौर पर लिया गया है।
इसलिए बाबा साहब अंबेडकर को अगर हमें संपूर्ण उनके ज्ञान की परिधि में देखना है और उनके ज्ञान के सौष्ठव में देखना है, तो हमको जो है इस प्रकार गणना करनी होगी, इस प्रकार ही आकलन करना पड़ेगा कि मेथोडोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी को हम बार बार देखें। इससे 6 प्रकार के फायदे होंगे जिसको मैं गिनाना चाहता हूं। एक, वी विल गेट ए कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क to understand and analyze Baba Saheb's thought and philosophy. एक बृहद फलक मिलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क मिलेगा हमको बाबा साहब अम्बेडकर के थॉट एंड फिलॉसफी को। हमको संकुचित दायरे में ही जो है, जैसा आपने देखा होगा अक्सर लोग कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है संविधान बनाया, बाबा साहब दलितों के मसीहा थे बस, और उसके बाद जय भीम जय भारत कर देते हैं। कुछ लोग आते हैं आजकल कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है आरबीआई की नींव रखी, उन्होंने सेंसस की नींव रखी, कुछ कहते हैं भाखड़ा नागल बांध की नींव रखी, कुछ कहते हैं कि उन्होंने जो है प्लानिंग कमीशन की भी नींव रखी। लेकिन साथियों, ये तो सिंपल सी एक बार अगर कहीं आप अगर सुन भी लें तो इस बात को बार बार रिपीट कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्ञान के उत्पादन में संवर्धन नहीं होता है। और हम जैसे टीचरों को, आप जैसे टीचरों को या छात्रों को, जो रिसर्चर्स को बाबा साहब अम्बेडकर के ज्ञान के उत्पादन की पद्धति और ज्ञान के उत्पादन की मीमांसा, ये दोनों पर हमको प्रकाश डालना होगा। तब कहीं जा करके हम विश्वविद्यालय विधा में हम किस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर को समझ रहे हैं, कॉलेज में रिसर्चर्स के बीच में कैसे समझ रहे हैं, एक्टिविस्ट के बीच में कैसे समझ रहे हैं, ये अलग होगा। तो ये पहला जो फायदा होगा वो, वी विल गेट ए कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज बाबा साहब अम्बेडकर। दूसरा, हमको बाबा साहब अम्बेडकर की जो भी तथ्य हैं, या बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भी विषय चुना है अध्ययन का, उसका एक लॉजिकल सीक्वेंस क्या है, ये पता चलेगा। और उस नॉलेज प्रोडक्शन के अंदर लॉजिकल सीक्वेंसिंग बहुत जरूरी है, और मैं उसके विषय में आपको एग्जांपल दूंगा। तीसरा जो है फायदा हमको ये होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के नेचर एंड स्कोप ऑफ हिज नॉलेज, उनकी प्रकृति क्या है और उनकी सीमा क्या है जिसके अंदर वो जो है ज्ञान का उत्पादन कर रहे थे, कितने प्रकार का ज्ञान का उत्पादन कर रहे थे, ये हमें देखना पड़ेगा। कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 प्रकार का ज्ञान का उत्पादन किया, सामाजिक, राजनैतिक, साहित्यिक या धार्मिक, और उसके बाद फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है शिक्षा पर क्या बोला, नारी के सशक्तिकरण के बारे में क्या बोला। तो इस प्रकार के 10 आयाम दिखाई पड़ते हैं, उनका हम जो है अध्ययन कर सकते हैं, और लोगों के लिए रिसर्च करने के लिए और भी आयाम हो सकते हैं, और वो साइंटिफिक नॉलेज कैसे प्रोड्यूस कर रहे थे इसके विषय। चौथा फायदा हमको ये होगा कि we will come to know the source and foundation of knowledge। बाबा साहब अम्बेडकर ने कौन कौन से स्रोत जो है प्रयोग किए, और इस स्रोत में 3 प्रकार के स्रोत जैसे हम देखते हैं। एक तो बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर किन नायकों का प्रभाव रहा है, ये हमको पता चलेगा अगर हम स्रोत देखेंगे। तो उनके ऊपर जैसे बुद्धा, कबीर और ज्योतिबा फूले, भारत के अंदर इन सब लोगों का काफी प्रभाव रहा, और बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने ज्ञान के उत्पादन के लिए इनके जो फलसफे थे उनको प्रयोग किया। दूसरा जो है, बाबा साहब अम्बेडकर का पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था, बाबा साहब अम्बेडकर के कितने प्रकार के अनुभव थे, बचपन में क्या अनुभव था, जब शैशव अवस्था थी तो उस समय क्या अनुभव था, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर जवान होकर के जब कोलंबिया जाते हैं तो क्या एक्सपीरियंस था, बाबा साहब जब लौट करके आते हैं और जो
बड़ौदा के महाराज के यहाँ जब नौकरी करने जाते हैं, पढ़ लिख करके आते हैं, पीएचडी करके आते हैं, और तब उनके क्या अनुभव थे। उसके बाद फिर वो वाइसरॉयस काउंसिल के अंदर कैसे जाते हैं, वो क्या अनुभव थे। कालाराम टेम्पल और चौदह टैंक आंदोलन चलाते हैं, बहिष्कृत भारत निकालते हैं, तब उनके क्या आंदोलन, क्या उनके अनुभव थे। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कैसे जाते हैं, ये क्या अनुभव थे। उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जनरल मेंबर में भी जाते हैं, लेकिन चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी बनते हैं, उस समय क्या एक्सपीरियंस थे और क्या योगदान था। इसके बाद वो बाबा साहब अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले जो है लॉ मिनिस्टर बनते हैं, और लॉ मिनिस्टर बनते हुए प्राइम मिनिस्टर नेहरू से उनके किस प्रकार के रिश्ते होते हैं, और उसके बाद वो किस तरह रिजाइन करते हैं। तो ये एक्सपीरियंस, क्या सचमुच ये एक्सपीरियंस भी आवश्यक है जानना। और लास्ट में बाबा साहब अम्बेडकर किस तरह धर्म परिवर्तन करके बाबा साहब अम्बेडकर बुद्धिस्ट बन जाते हैं। तो ये जो अनुभव हैं, क्या ये विभिन्न प्रकार के अनुभव बाबा साहब अम्बेडकर के ज्ञान के उत्पादन में कुछ प्रभाव डालते हैं, इसकी गणना करना हमको जरूरी है। और इसकी गणना करना इसलिए भी जरूरी है कि सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं, बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं जो ये कहते हैं कि जो हमारी बायोग्राफी है, जो हमारा वृत्तांत है, जीवन वृत्तांत है, वो हमारे ज्ञान के उत्पादन पर बहुत असर डालता है। सी राइट मिल्स क्या कहते हैं, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। और पांचवा फायदा जो हमको होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कितने प्रकार के पर्सपेक्टिव्स, हाउ मेनी पर्सपेक्टिव ही हैज यूज्ड टू प्रोड्यूस हिज नॉलेज। पर्सपेक्टिव का मतलब कितने प्रकार के दृष्टिकोण, हम लोग उसको समाज विज्ञान में, समाज शास्त्र में संदर्श पर्सपेक्टिव कहते हैं। तो कितने प्रकार के पर्सपेक्टिव बाबा साहब ने प्रयोग किए, इसका भी हमें जो है ज्ञान होगा इस पद्धति शास्त्र से और इस ज्ञान मीमांसा से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी विल आल्सो कम टू नो the the exact social ecology in which he has produced the knowledge, और किस तारीख से उन्होंने अपने ज्ञान का उत्पादन शुरू किया, और वह ऐसी कौन सी पद्धति थी जिसके अंदर जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना जो है नॉलेज प्रोड्यूस किया। ये परिधि, क्या वो फॉर्मल औपचारिक वातावरण में अपने ज्ञान का उत्पादन कर रहे थे, या केवल वो जाकर के सभाओं में भाषण देते थे और वो ज्ञान बन जाता था, इसकी भी गणना हमें करनी होगी। तो अब साथियों हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो कि मैंने बताया कि पहला आपको जो है फायदा होगा वो होगा बृहत फ्रेमवर्क का। तो अगर हम यहीं से बात अपनी शुरू करें, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने नॉलेज, ज्ञान को जो है किस आधार पर और कब से शुरू किया, कहां पर शुरू किया, यानी कि सोशल इकोलॉजी, जो वातावरण है, उसकी बात करते हुए हम उस फलक पर पहुंचेंगे जिस पर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने ज्ञान का उत्पादन किया। तो सबसे पहला लेख अगर हम देखें बाबा साहब अम्बेडकर का, वो 1917 में पब्लिश होता है। 1917 में एंटी क्वेरी, जो अमेरिका का इंटरनेशनल जर्नल है, उसके अंदर बाबा साहब का पहला लेख छपता है, कास्ट मैकेनिज्म एंड स्प्रेड। तो ये जो कास्ट की उत्पत्ति और उसका जो विकास है, ये पहला उनका जो लेक्चर था वो 1917 में बनता है। और ये जो वातावरण है वो एक तरह से हम देखेंगे कि वो वातावरण जो है वो बड़ा ही फॉर्मल, औपचारिक वातावरण है जिसके अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये ज्ञान का उत्पादन किया। दूसरा उनका आर्टिकल अगर हम देखें तो
वो आता है इंडियन इकोनॉमिक सोसाइटी वॉल्यूम 1 1980 में, 1918 1918 में दूसरा आर्टिकल अगर आप देखेंगे तो वो आता है इंडियन इकोनॉमिक सोसाइटी में। और उसके बाद बाबा साहब अंबेडकर को और भी अगर फॉर्मल तरीके में हम देखना चाहते हैं तो बाबा साहब का एमए का डिसर्टेशन देखिए, पीएचडी का डिसर्टेशन देखिए जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1916 में उन्होंने जमा किया। और उसके बाद 1922 में बाबा साहब अंबेडकर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी जो है अपना पीएचडी डिसर्टेशन सबमिट किया। उसके पहले बाबा साहब अंबेडकर ने साउथ बरो कमेटी के पास रिप्रेजेंटेशन दिया 1919 में। और 1919 में जाकर के बाबा साहब अंबेडकर ने जो रिप्रेजेंटेशन दिया था वो भी एक फॉर्मल औपचारिक रिप्रेजेंटेशन था कि किस प्रकार दलितों की नुमाइंदगी हो सकती है। बाबा साहब अंबेडकर ने 1920 में जनवरी में अखबार निकाला और उसके अंदर जो लेखन था उनका वो भी एक तरह से औपचारिक लेखन था, क्योंकि लिखित अखबार जो है वो बहुत जरूरी है कि वो समझा जाए कि आप लिखित अखबार को झुटला नहीं सकते। इसलिए लिखित अखबार बहुत जरूरी था 1920 जनवरी में। इस तरह आप देख सकते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो अपने ज्ञान का उत्पादन शुरू किया वो बहुत ही औपचारिक वातावरण में, चाहे वो कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो जर्नल में लिखना हो, चाहे वो पीएचडी थीसिस में लिखना हो, चाहे वो कमेटी के सामने समक्ष प्रस्तुत करना हो। और आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो ज्ञान का उत्पादन किया वो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसमें किया, और यहाँ तक कि जो कमीशन आया उसके समक्ष उन्होंने अपने लेख रखे, रिप्रेजेंटेशन दिया। साउथ बोरो कमेटी के बारे में मैंने आपको बताया। और उसके बाद बाबा साहब का जो ज्ञान का उत्पादन था वो संविधान सभा के अंदर देखा जा सकता है कि किस प्रकार बाबा साहब अंबेडकर ने लगातार जो है वहां पर 141 दिन तक संविधान निर्मात्री कमेटी के चेयरमैन के रूप में उत्पादन किया। यद्यपि उस कमेटी में 7 लोग बताए जाते हैं कि 7 मेंबर हुआ करते थे उस कमेटी में, लेकिन टीटी कृष्णमाचारी ने जब 25 नवंबर 1949 में जब संविधान सभा की आखिरी बैठक थी उसके अंदर जो बताया कि यद्यपि संविधान निर्मात्री सभा में 7 मेंबर हुआ करते थे, लेकिन उस 7 मेंबर की कमेटी में एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी और उसको रिप्लेस नहीं किया गया, एक व्यक्ति अमेरिका चला गया उसको रिप्लेस नहीं किया गया, एक व्यक्ति बीमारी के कारण नहीं आ पा रहा था, और 2 लोग जो थे वो बहुत दूर थे दिल्ली से पश्चिम के अंदर या दक्षिण में, जो कि आ जा नहीं सकते थे, और एक व्यक्ति जो था वो अपने स्टेट के काम में बहुत बिजी हो गया। इस प्रकार 6 मेंबर जो अलग थे वो जो है वो कहीं ना कहीं कोई भी योगदान संविधान बनाने में नहीं कर पाए। और हुआ ये कि पूरा का पूरा दायित्व संविधान बनाने का बाबा साहब अंबेडकर पर आ गया। अब ये कितना बड़ा ज्ञान था, ये आप नेचर एंड स्कोप समझिए कि ये कितना बड़ा योगदान था। इसके लिए मैं आपको 2 आंकड़े ही केवल देना चाहूंगा। पहला कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो मसौदा पहली बार रखा, मसौदा रखते समय संविधान निर्मात्री सभा के चेयरमैन होने के नाते मसौदा उनको रखना था। तो 395 जो हमारे आर्टिकल्स बने संविधान के अंदर, उसका मसौदा रखने के बाद 7635 अमेंडमेंट आए थे, 7635 संशोधन आए उस मसौदे के अंदर। बाबा साहब अंबेडकर ने 7635 मसौदों को पढ़ा और उसमें से 5162 मसौदों को 5162 जो संशोधन थे उनको उन्होंने खारिज किया, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो हैं
इनके कोई मूल्य नहीं है, इनके कोई माने नहीं है और इसलिए इनको खारिज किया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर ने 2473 2473 जो अमेंडमेंट थे उनको अंगीकार किया। अब आप बताइए कि क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने 7635 अमेंडमेंट को जब पढ़ा होगा तभी तो उन्होंने 5162 को खारिज किया होगा। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा संविधान निर्माण के अंदर कितना विकराल और कितना जो विशाल काय काम किया गया, इसको हमें समझाना चाहिए अपने छात्रों को और हमें भी समझना चाहिए कि बाबा साहब का अम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन कितना है। वरना कुछ लोग वर्शिपिंग द फॉल्स गॉड लिख देते हैं और कहते हैं नहीं बाबा साहब अम्बेडकर तो ड्राफ्टमैन थे। आपको पता होगा कि अरुण चौधरी ने वो किताब लिखी थी जिसको कि जो है कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति या रिसर्चर, यूनिवर्सिटी का रिसर्चर खारिज कर सकता है क्योंकि वो जर्नलिस्ट थे, इसलिए उन्होंने वो किताब लिख दी। लेकिन हमारा कर्तव्य ये बनता है, रिसर्चर का कर्तव्य ये बनता है कि हम पूरी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा किए गए रिसर्च के इस कार्य को बताएं। दूसरा आंकड़ा मैं देना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने मसौदा रखते समय जो स्पीच दी थी वो 8000 शब्दों से ज्यादा की स्पीच थी। 8000 शब्दों की स्पीच वही व्यक्ति दे सकता है जिसने सचमुच संपूर्ण अध्ययन किया हो मसौदे का, संविधान के मसौदे का। और उसके बाद जब बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा के संविधान की फाइनल कॉपी सौंपी, तो उस समय जो उनकी स्पीच थी वो 3900 वर्ड की स्पीच थी। और उस स्पीच में बाबा साहब अम्बेडकर ने अनेक प्रश्नों का उत्तर दिया। वो प्रश्न आपको केवल एक बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने विभिन्न विचारधाराओं के जो लीडर थे संविधान सभा में वो किस प्रकार का रिएक्शन कर रहे थे, what was the reaction of them, बाबा साहब was answering to them। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा किए गए कार्य की हमें संपूर्णता से जो है एनालिसिस करनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर का तीसरा आंकड़ा कि उनका कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा था संविधान सभा के अंदर, तो उसके लिए आपको संविधान निर्मात्री कमेटी की जो रिपोर्ट है जो पूरी की पूरी 5 वॉल्यूम में उस समय लोकसभा ने जो है जारी करी, उसको पब्लिश किया और आज भी वो पब्लिश होती है। आप देखेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर डेली 8 से 9 बार उठते थे बोलने के लिए संविधान निर्मात्री सभा के अंदर और संविधान सभा के अंदर। कभी वो मोशन मूव करते थे, कभी वो जो है बाबा साहब अम्बेडकर उसका रिप्लाई करते थे, लेकिन कभी कभी 25 से 26 बार उठ करके बाबा साहब बोलते थे। तो जो मैं आपको तथ्य बताना चाह रहा हूं कि अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, अगर हम आकलन कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर का, तो हमें बाबा साहब अम्बेडकर के पूर्ण रूप से इस एनालिसिस को करना चाहिए। ये पहला एग्जाम्पल आपको मिलता है कि हम अगर ज्ञान मीमांसा और पद्धति शास्त्र के साथ अध्ययन करेंगे तो हमको एक वृहत आयाम मिलेगा बाबा साहब अम्बेडकर के रिसर्च करने का, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। दूसरा एग्जाम्पल कि वृहत आयाम मिलेगा और हमको सीक्वेंसिंग मिलेगी कि बाबा साहब अम्बेडकर ने सीक्वेंसिंग की और उनके उस संकुचित नजरिए को जो है हम बदल देंगे। जैसा कि आपने देखा होगा एक प्रचलन है, बाबा साहब अम्बेडकर को केवल जाति व्यवस्था का आकलन करने वाला ही रिसर्चर माना जाता है कि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल जात पर ही रिसर्च किया है। और कुछ लोग बाबा साहब अम्बेडकर को कास्ट में रिड्यूस करके उनको केवल यही बताते हैं कि उनका अध्ययन जाति वाद का उन्मूलन, एनालिसिस ऑफ कास्ट, उनकी सबसे बड़ी पुस्तक बता देते हैं।
तो ये जो है, मुझे लगता है कि ये बाबा साहब अंबेडकर के साथ ना इंसाफी है। इट इज इनजस्टिस टू बाबा साहब अंबेडकर इंटेलेक्चुअल बेसिस। इसलिए हमको ये बताना पड़ेगा कि बाबा साहब अंबेडकर ने जाति की आत्मनिर्भर विशेषता कभी नहीं बताई। बाबा साहब अंबेडकर ने जो सीक्वेंस कास्ट को समझने के लिए डाला है, अगर आप देखें तो आपको 2 आर्टिकल पढ़ने चाहिए बाबा साहब अंबेडकर के, और वो उस किताब में फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म में बाबा साहब के 2 आर्टिकल हैं। एक है यूनिक फीचर ऑफ हिंदू सोशल ऑर्डर और दूसरा है एसेंशियल फीचर ऑफ हिंदू सोशल ऑर्डर। इसके अंदर बाबा साहब अंबेडकर बाकायदा लिखते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो रिसर्च किया, वो बाबा साहब अंबेडकर ने जो रिसर्च किया वो रिसर्च था सामाजिक व्यवस्था का, हिंदू सोशल ऑर्डर का रिसर्च कर रहे थे। और हिंदू सोशल ऑर्डर के रिसर्च करते करते बाबा साहब अंबेडकर ने सीक्वेंस दिया है। इसलिए हमें बाबा साहब अंबेडकर के इस सीक्वेंस को समझना बहुत जरूरी है, वरना हम बाबा साहब अंबेडकर के साथ इंसाफ नहीं करेंगे साथियों। तो मैं उस सीक्वेंस को यहाँ पर बताना चाहता हूं कि सबसे पहले बाबा साहब अंबेडकर ने जो बात कही, अगर हिंदू सामाजिक संरचना की जो गणना करी, तो सबसे पहला बाबा साहब ने कहा कि whether Hindu social order is a open Hindu social order, क्या जो सामाजिक व्यवस्था है वो खुली व्यवस्था है कि नहीं है। दूसरी बात उन्होंने पूछी, व्हाट इज द प्लेस ऑफ इंडिविजुअल इन द हिंदू सोशल ऑर्डर, व्यक्ति की, एक व्यक्ति की स्थिति क्या है सामाजिक व्यवस्था के अंदर, इसकी गणना करी। तीसरी जगह बाबा साहब ने कहा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोशल ऑर्डर, सामाजिक संरचना क्या है। और सामाजिक संरचना को बाबा साहब अंबेडकर ने बड़े नवीन तरीके से पढ़ करके बताया साथियों। ऐसी सामाजिक संरचना की गणना किसी भी समाजशास्त्री ने नहीं की है, और इसलिए ये जरूरी है कि हम बाबा साहब अंबेडकर की उस हिंदू सोशल ऑर्डर की एनालिसिस को देखें, जिससे कि हमें पता चल पाएगा कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो है किस प्रकार जो है एनालिसिस किया सोशल स्ट्रक्चर का। मैं यहाँ पर केवल एक बात बताना चाहता हूं कि स्ट्रक्चर को उन्होंने कैसे समझा, क्योंकि बात लंबी हो जाएगी। तो स्ट्रक्चर को समझने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने सबसे पहले मनु स्मृति की स्कीम में सोशल स्ट्रक्चर कैसे समझाया गया है इसके बारे में बताया। उन्होंने सबसे पहले बताया कि जो भारतीय हिंदू सामाजिक व्यवस्था है उसके अंदर 2 प्रकार के फाड़ हैं, पहले है वैदिका और दूसरा है दस्यु। ये किसी भी समाजशास्त्री ने इस प्रकार का आकलन नहीं किया जो कि बाबा साहब अंबेडकर का आकलन है, और इसलिए वो उनका ओरिजिनल आकलन है। हमें समझना चाहिए कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था को उन्होंने पहले 2 फाड़ में बांटा, एक था वैदिका, दूसरा था दस्यु। एंड उसके बाद फिर वैदिक जो थे, वैदिक लोग थे, उनको 4 भागों में बांटा गया। Those who were into the चातुर्वर्ण, चातुर्वर्ण के अंदर थे, और जो लोग चातुर्वर्ण के बाहर थे। 2, तीसरा वृत्य, और चौथा पतित या आउटकास्ट। Those outcast चातुर्वर्ण आर फर्दर, जो आउटकास्ट थे उनको बाद में आगे चल करके मनु ने फिर से डिवाइड किया, और वो थे अनुलोम और प्रतिलोम। ये प्रकार, मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार का बाबा साहब अंबेडकर ने जो सामाजिक संरचना का अध्ययन किया है, किसी भी समाजशास्त्री ने ऐसा किया होगा। उसके बाद बाबा साहब अंबेडकर ओरिजिन ऑफ वर्णा, क्योंकि पहले लोग वर्णान बता देते हैं, बाद में बाबा साहब अंबेडकर वर्णा पर आते हैं। और वर्णा को बाबा साहब अंबेडकर जो वर्ण की समीक्षा करते हैं वो ऋग्वेदा पुरुष सूक्त का 10th मंडल से भी करते हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जो है बाकायदा एक थीसिस देते हैं कि ये जो आज के शूद्र हैं वो क्या थे,
और उनकी उत्पत्ति कैसे थी। तो ये एक बहुत अलग सी एक ओरिजिनल एनालिसिस है। और यहां तक कि बाबा साहब अंबेडकर जो अथर्ववेद है उससे भी बाबा साहब अंबेडकर इसकी गणना करते हैं। इसके बाद फिर बाबा साहब अंबेडकर ओरिजिन ऑफ कास्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ कास्ट पर जाते हैं और उसके बाद अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता की एनालिसिस करते हैं कि वो कैसे उत्पन्न हुआ। और अनटचेबिलिटी का एनालिसिस जो है बाबा साहब अंबेडकर पहली बार मुकर्रर करते हैं कि द अनटचेबल केम इनटू बीइंग मच लेटर देन 400 एडी, यानी कि 400 एडी के बाद, ईसा के पूर्व जिसे कहना चाहिए, उनका उत्पत्ति हो रही है। और वो ये जो है एक तरह से बाबा साहब अंबेडकर बताते हैं कि भारतवर्ष में कब और कैसे अनटचेबल पैदा हुए। ये एक वृहत आयाम है जो कहीं भी नहीं दिखाई देता। दूसरा साथियों, बाबा साहब अंबेडकर एक और इसकी मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर का कितना वृहत अध्ययन था, और वो है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के बारे में बाबा साहब अंबेडकर शुरू करते हैं बाकायदा बताना who is a politician and he defines what is politics। बिस्मार्क को कोट करते हुए वो पॉलिटिशियन की डेफिनेशन देते हैं, और मार्टिन लूथर किंग को जो है बाकायदा वो बताते हैं कि किस प्रकार पॉलिटिक्स की जो है बात हो सकती है, बताई जा सकती है। इसके बाद फिर बाबा साहब अंबेडकर बताते हैं कि वेस्ट में, पश्चिम देशों के अंदर पॉलिटिक्स क्या समझी जाती थी, और वहां पर स्पेन में, इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में, रशिया में डेमोक्रेसी क्यों फेल हुई, प्रजातंत्र क्यों फेल हुआ, और प्रजातंत्र के क्या मायने हैं, और अगर हमको भारत में प्रजातंत्र बनाए रखना है तो क्या क्या उपाय करने चाहिए। ये बृहत उनका बाबा साहब अंबेडकर का आयाम है। और यहीं पर बाबा साहब अंबेडकर को और भी आगे अगर समझना है तो बाबा साहब अंबेडकर द्वारा राष्ट्र की परिभाषा, राष्ट्र की परिभाषा और राष्ट्र निर्माण के लिए किए गए योगदान की भी हमें गणना करनी पड़ेगी। हाउ डिड बाबा साहब अंबेडकर कंट्रीब्यूट इन द मेकिंग ऑफ ए नेशन, राष्ट्र निर्माण में उनका क्या योगदान था। ये साथियों जो है ये दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि किस प्रकार बाबा साहब अंबेडकर ने बाकायदा जो है वृहत रूप में एनालिसिस किया है। एक तीसरा एग्जाम्पल भी आपको दे सकते हैं और वो है रिलीजन। बाबा साहब अंबेडकर का जो वृहत स्कीम है धर्म को पढ़ने की, मुझे लगता है रिसर्चर्स को इसके बारे में अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर को केवल जाति तक संकुचित कर देना, सिकोड़ देना, ये उनके साथ इंटेलेक्चुअल पॉवर्टी है। मैं इसको दानीश्वरों की गरीबी कहूंगा कि उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को पूर्ण रूप में नहीं समझा। तो साथियों अगर हम देखें तो बाबा साहब अंबेडकर ने जो है उन्होंने फिर शुरू किया जो है इवोल्यूशन ऑफ रिलीजन। इवोल्यूशन ऑफ रिलीजन जो है या जो धर्म की उत्पत्ति है या उद्गम है उसके बारे में और धर्म की मीमांसा। His epistemology of religion is very important to understand. Now, in this context, if you see, according to Ambedkar, he tried to define religion, and he also tried to define origin of religion. Religion की उत्पत्ति कैसे हुई, and then he went on to differentiate between religion and dhamma. धम्मा और जो है धम्म में क्या अंतर है, और उन्होंने बताया धम्म के मध्य में ईश्वर है और धर्म के मध्य में ईश्वर है और धर्म के मध्य में इंसान है, किस प्रकार जो है दिखाते हैं। उसके बाद टाइपोलॉजी ऑफ रिलीजन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलीजन्स आर देयर
दैट्स व्हाट बाबा साहब ट्राई टू अंडरस्टैंड, कितने प्रकार का रिलीजन है। और यहाँ पर उन्होंने जो है कोट किया, एक मतलब कहना चाहिए कि एक मैक्स मूलर को उन्होंने कोट करते हुए बताया कि मैक्स मूलर ने रिलीजन को 10 प्रकार के रूप में बांटा है। कोई कहता है रिवील्ड रिलीजन है, कोई कहता है नेचुरल रिलीजन है, कोई कहता है डेइस्टिक रिलीजन है, कोई कहता है पॉलिथिस्टिक, कोई मोनोथिस्टिक, कोई हेडोनिस्टिक और कोई एनिमिस्टिक। इतने प्रकार के रिलीजन उन लोगों ने बताए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, रिलीजन को हम 2 प्रकार के अंदर बाकायदा सुनिश्चित कर सकते हैं। और उन्होंने बुक रिलीजन और रिवील्ड नेचुरल रिलीजन और बुक रिलीजन के अंदर उसको समायोजित कर दिया। तो ये एक बृहत आयाम। उसके बाद फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने बृहत आयाम देते हुए ओरिजिन और टाइपोलॉजी ऑफ रिलीजन, उसके बाद फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने ही केम टू टॉक अबाउट फंक्शन ऑफ रिलीजन। उसके प्रकार क्या हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिलीजन। और इसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने बाकायदा फंक्शन ऑफ रिलीजन में कोट किया इमाइल डर्खाइम को। साथ इमाइल डर्खाइम को उद्धृत किया। और आप जानते हैं कि इमाइल डर्खाइम वाज वन ऑफ द टॉप मोस्ट सोशियोलॉजिस्ट ऑफ दैट, एंड बाबा साहब अम्बेडकर इज कोटिंग him in his text on religion, function of religion. And he says that religion is basically social. It is not individual. व्यक्तिगत नहीं है, ये सामाजिक है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है माइथोलॉजिकल जो थियोलॉजी है उनके अंदर बांटा कि धर्म को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक है थियोलॉजी और एक है रिचुअल। एक अनुष्ठान है और दूसरा है थियोलॉजी। एक है थियोलॉजी में उन्होंने कई प्रकार की थियोलॉजी का भी वर्णन किया। उन्होंने कहा माइथोलॉजिकल थियोलॉजी है, सिविल थियोलॉजी है, और इसके अंदर हम देखेंगे कि माइथोलॉजिकल और सिविल थियोलॉजी में क्या क्या हो सकता है। इसके बाद वो ग्रीक माइथोलॉजी में जाते हैं और वहां पर भी मिथिकल और सिविल थियोलॉजी को देखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर बाकायदा रिलीजन की गणना करते हैं। बात बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको यहीं तक रह रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर पहले धर्म की उत्पत्ति, धर्म और धर्म की डिफरेंस, फिर उसके प्रकार, और उसके बाद उसका फंक्शन, यही नहीं रुकते हैं। फिर बाबा साहब अम्बेडकर कंपेयर करते हैं कार्ल मार्क्स और बुद्धा को। बुद्धा के रिलीजन को बाकायदा वो कंपेयर करते हुए बताते हैं कि वास्तविकता में ये क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और लास्ट उनकी किताब है बुद्धा एंड हिज धम्मा। तो साथियों, जो मैं बात कहना चाह रहा था वो ये थी कि बाबा साहब अम्बेडकर के ज्ञान को अगर आप समझना चाहते हैं तो उनकी परिधि कितनी बड़ी है इसको हमें समझना चाहिए। अब मैं आता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो नेचर एंड स्कोप है, तो हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के नेचर एंड स्कोप को अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कम से कम नहीं तो 10 प्रकार के ज्ञान के उत्पादन की बात करी है। और उन्होंने जो ज्ञान का उत्पादन 10 प्रकार में किया है वो बड़ा ही रिसर्चेबल है और बड़ा ही साइंटिफिक है। उन्होंने कपोल कल्पित कथा के आधार पर ज्ञान की जो है वो प्रोड्यूस नहीं किया। उन्होंने बाकायदा बताया है कि किस किस प्रकार जो है वो नॉलेज जो है वो सोशल नॉलेज एक प्रकार से, जो सोशल नॉलेज है वो एक प्रकार है, और बहुत ही रिसर्चेबल आर्टिकल्स और किताबें उन्होंने करी। दूसरा रिलीजियस, मैंने आपको बताया एग्जाम्पल। तीसरा इकोनॉमिक, उनकी पीएचडी थीसिस इकोनॉमिक थी। और फिर पॉलिटिकल, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स, स्टेट एंड माइनॉरिटीज। फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर जो रिसर्च है बाबा साहब अम्बेडकर का, दैट इज आल्सो रेफरेंशियल, you can see that. Then we have also researches on gender, and that if you see Hindu Code Bill, that is gender analysis, and of course comparative analysis of the societies. If you see, I will come to that later, but I'm just telling you
that this is also a nature of Baba Sahib's production of knowledge. So economic, political, social, religious, constitutional, cultural, these are nature and scope of Baba Sahib's knowledge. That brings me to the source and foundation, the epistemic basis, उनके ज्ञान का जो बाबा साहब अम्बेडकर का बेसिस है. तो source and foundation में I told you that Baba Sahib Ambedkar has produced its knowledge on the basis of number of things, but three bases we are supposed to understand. One is basically we are talking about that how did Baba Sahib was influenced, Baba Sahib par prabhav pada kin kin logon ka. So Buddha was the first person to influence Ambedkar, then Kabir was a second influence, and third was Jyotiba Phule. These were the three influences, and then 10 types of experiences which Baba Sahib Ambedkar has. I think it is very important for us to know those type of experiences, because if we know the experiences, then definitely we can think of that how Baba Sahib Ambedkar has really shaped his thought and philosophy. अगर 10 प्रकार के एक्सपीरियंस को उसको देखें तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर किस प्रकार का ये प्रभाव पड़ा है. तो साथियों, पहला बचपन के अंदर जो प्रभाव पड़ा वो प्रभाव था कि किस प्रकार बाबा साहब अंबेडकर को बाहर जो है देख झेलना पड़ा, और उसके बाद फिर जो है बाबा साहब अंबेडकर पर जो प्रभाव पड़ा वो उनकी एक स्वतंत्र जो उनको सामाजिक व्यवस्था मिली कोलंबिया विश्वविद्यालय में, उसका प्रभाव पड़ा. फिर उसके बाद बाबा साहब अंबेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाते हैं और लौट करके आते हैं. तो बाबा साहब अंबेडकर को किस प्रकार का प्रभाव पड़ा भारत में, शिवाजी राव वो क्या बोलते हैं महाराजा ऑफ बड़ौदा के वहां पर. उसके बाद बाबा साहब अंबेडकर जब एक्सपीरियंस जो है दैट इज मेंबर्स ऑफ वाइसरॉय काउंसिल वेयर ही हैज पावर and he can dictate many things. He could dictate many things. उसके बाद फिर बाबा साहब अंबेडकर का जो पांचवा एक्सपीरियंस, फिफ्थ एक्सपीरियंस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर इज द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉमन मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, where he criticizes not only Nehru but he also criticizes Hindus and Muslims who were fighting. The sixth experience is that member of the drafting committee and becomes its chairman, and sixth is basically the first law minister, seventh is the first law minister, and of course resignation. This is all written document and therefore you can understand. And then eighth is the member of opposition. As Rajya Sabha member, he gets elected again from Khulna and then he comes here. Last but ninth is basically as an activist, and 10th is actually after he converts. These are 10 experiences of Baba Sahib Ambedkar which have shaped his knowledge. Now last, actually you can ask that, sir, why we need, हमें उनकी वृत्तांत की क्या आवश्यकता है? Why should we be worried about his biography? तो साथियों, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि कुछ सोशल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि बायोग्राफी कितनी इंपॉर्टेंट है. बायोग्राफी, हिस्ट्री एंड देयर इंटरैक्शन इन सोसाइटी आर थ्री कोऑर्डिनेट्स. ये तीन कोऑर्डिनेट है on the basis of which social sciences are constituted. Social sciences data can be constituted. Biography, history, and their interaction in society. दूसरे पीटर बर्जन एंड लॉकमैन है, और वो कहते हैं बाकायदा कि जो सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज है वो बताती है कि रियलिटी सोशली कंस्ट्रक्टेड, वास्तविकता सामाजिकता कैसे निर्मित होती है. और इसलिए हमें वास्तविकता जो सामाजिकता है वो आत्मवृत्तांत बायोग्राफी से ही पता चलेगी, क्योंकि जो सोशल डिटर्मिनिज्म ऑफ थॉट, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज gives us social determination of thought. That is important. Therefore, it is important. The fourth important aspect is that is P. Bourdieu. P. Bourdieu says that some people are born with cultural capital and some people are born without cultural capital. कुछ लोग
सांस्कृतिक पूंजी के साथ पैदा होते हैं और कुछ लोग सांस्कृतिक पूंजी के बगैर पैदा होते हैं। तो हम जब बाबा साहब अंबेडकर की, when we are talking about biography of Baba Saheb Ambedkar, then we are talking about a person who did not have the cultural capital of the mainstream cultural capital नहीं था, and उनकी जो वंचना थी, the deprivation which he suffered, his construction of consciousness out of that, and out of that actually he was producing his knowledge, and that is why he could see that villages are den of ignorance. जबकि गांधी ये कह रहे थे कि वो राम राज्य है, ग्राम स्वराज चाहिए, एंड ग्राम स्वराज के अंदर जो है बाकायदा प्रजातंत्र बसेगा। बाबा साहब अंबेडकर उनसे डिफर कर रहे थे कि नहीं, जो विलेज हैं they are basically den of ignorance, they are negation of democracy and therefore we cannot go into। और उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे जो आत्मकथाएं आई हैं, उन आत्मकथाओं के अंदर भी ये बात कही गई कि विलेज किस प्रकार का। अगर आप देखें ओम प्रकाश वाल्मीकि को, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को जूठन दिखाई देता है जो कि किसी भी समाज विज्ञानी को नहीं दिखाई दिया गांव के अंदर, और गांव का कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया। उसी तरह तुलसीराम को मुर्दैया दिखाई देता है गांव के अंदर, लेकिन किसी भी समाज शास्त्री को, समाज विज्ञानी को जो है वो गांव के अंदर मुर्दैया नहीं दिखाई दी। तीसरा, अगर आप एग्जाम्पल लें मेरा बचपन मेरे कंधों पर, तो शिवराज सिंह बेचैन के टीचर, या मुर्दैया में तुलसीराम के टीचर, या जूठन में ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो टीचर हैं, उनका व्यवहार क्या है। जबकि हम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। लेकिन ये गुरु कौन से थे जो उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे। लेकिन ये ग्रामीण परिवेश था, और इसलिए ग्रामीण परिवेश के अंदर जो सामाजिक चेतना है और सामाजिक पूंजी है, उसके आधार पर ही व्यक्ति का चेतना सृजित होती है, जिससे ज्ञान का उत्पादन होता है। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर की बायोग्राफी को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके ज्ञान का उत्पादन, उनकी वंचना, उनके साथ जो उड़ाना अनादर और उनके साथ जो कुछ भी भेदभाव हुआ, उसके आधार पर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने ज्ञान को निखारा, और इस आधार पर ही बाबा साहब अंबेडकर ने ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जिससे कि सभी को सामाजिक न्याय मिल सके, वरना शायद ये नहीं हो पाता। तीसरी बात जो बेसिस है, ज्ञान की फाउंडेशन है, कितने प्रकार के रेफरेंसेस बाबा साहब अंबेडकर के शोध में पाए जाते हैं, इसकी गणना मैं करना चाहता हूं। 10 प्रकार के स्रोत बाबा साहब अंबेडकर के लेखों में दिखाई देते हैं। ये हमें समझना चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर की जो नॉलेज प्रोडक्शन है वो रेफरेंशियल है, और 10 प्रकार के रेफरेंसेस वी कैन रियली see that there are 10 types of references in Baba Saheb production of knowledge. One, the first one you will see, it is archaeological evidences. Archaeological evidences, then we have archival evidences, then we have Indological evidences. Indological जो यहाँ के गणमान्य पुस्तकें हैं, चाहे वेद हो पुराण हो, बाबा साहब अंबेडकर ने उसका बाकायदा जो है रेफरेंस लिया और अपनी नॉलेज में प्रोडक्शन में लगाया। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ रिपोर्ट्स बाबा साहब ने ली अपने स्रोत में, कमीशन की रिपोर्ट ली, और उसके बाद पेपर न्यूज़पेपर क्लिपिंग को बाबा साहब अंबेडकर ने अपने जो है ज्ञान का स्रोत बनाया। उसके बाद इंसाइक्लोपीडिया, 6 प्रकार की, देयर वर 6 टाइप्स ऑफ इंसाइक्लोपीडिया व्हिच बाबा साहब यूज्ड, एंड books and journals were used by Baba Saheb Ambedkar as source of knowledge based on people's experience. Baba Saheb Ambedkar was interacting with the others and taking their experience. What is their experience? And his own personal observation. These are the 10 factual sources of the production of knowledge of Baba Saheb Ambedkar. Okay, so we can definitely see that Baba Saheb Ambedkar was not producing speculative knowledge. He was not producing conjectural knowledge. किसी ने कहा किंवदंतियों के आधार पर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने ज्ञान का उत्पादन नहीं किया है। Rather, Baba Saheb Ambedkar has produced knowledge
with references, with sources, and with experiences. Last point which I'm trying to see, show that how many types of perspective Baba Sahib Ambedkar has used in his production of knowledge. So there are four perspectives which are very clear in Baba Sahib Ambedkar's production of knowledge. The first perspective is historical. Baba Sahib Ambedkar is actually oriented towards historical perspective. And this historical perspective is origin of every institution. If he is trying to analyze, वो किसी भी संस्था की उत्पत्ति और उद्गम के अंदर जाते हैं. अगर वो देख रहे थे origin of caste, तो वो origin of caste में गए, origin of untouchability and historical analysis of varna, and then he also goes into origin of religion. So these were historical perspective with which Baba Sahib Ambedkar produced his knowledge. So you will find a historical perspective. Second perspective is evolutionary, udvakasiya drashtikon, how things have evolved. And that is where Baba Sahib Ambedkar uses his origin of religion in India, and then origin of religion in the world. And also then he talks about origin of untouchability. So evolution is a very important understanding of Baba Sahib's perspective. The third perspective which Baba Sahib uses is comparative perspective. बाबा साहब तुलनात्मक अध्ययन को बहुत ज्यादा जोर देते हैं, और तुलनात्मक अध्ययन अगर आप देखें बाबा साहब अम्बेडकर का, तो उसके अंदर बाबा साहब अम्बेडकर अनेक प्रकार के समाजों का अध्ययन करते हुए he then produces his knowledge, and also he tries to analyze the different types of institutions. For example, when he was trying to understand revolution, social revolution and political revolution, Baba Sahib Ambedkar begins analyzing and revolution among Puritans, revolution among Arabs, and then he also tries to understand revolution of Buddha, Buddha की क्रांति, Arabs के अंदर क्रांति और Puritans की क्रांति, ये अगर आप ancient world में देखें. Then in the modern world he tries to analyze revolution, French Revolution with Japanese Revolution, and these two revolution with Indian Revolution against colonialism. फ्रांस की क्रांति जापान की क्रांति से कैसे भिन्न है, और ये दोनों क्रांतियों के अंदर अभिजात्य वर्ग, what was the role of elites in these two revolutions. And then he comes to India and then tries to analyze that how in India these revolutions have occurred against colonialism, against the British. But what is the role here? Here, the role of the elites, अभिजात लोगों की जो भूमिका है, वो बड़ी संदिग्ध है. Instead of sharing the power, they are trying to monopolize the political power. And that's where there is that difference. बाबा साहब अम्बेडकर ने, फिर आपको पता होगा कि अगर कंपैरेटिव व्यवस्था का देखें, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी संविधानों का ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, आयरलैंड, इंडिया, अमेरिका, इन सभी जो है कॉन्स्टिट्यूशंस का, संविधानों का, he tried to compare them. How many articles are there? How many motions are there? And how many amendments were there? He tries to analyze, and how much time they have taken, and how much time Indian constitution is taken. So he compares this. Last perspective is developmental perspective. Baba Sahib Ambedkar is trying to analyze the development, and in development, definitely an economic aspect is there, but of course, reorganization of Indian states, that is a development perspective. And then he tries to divide at that time Bihar into 3 parts and UP in 4 parts. He divided, Maharashtra in 3 parts,
And now if you see that UP is already divided, Uttarakhand is already divided, so he could see there, and still there is no demand of Purvanchal in Uttar Pradesh. And we can see that how Bihar has been bifurcated, Madhya Pradesh has been bifurcated. This was all his actually belief in basically comparative perspective. And then developmental perspective, the rights to the women. I think very important contribution of Baba Sahib Ambedkar. If you see right to marriage, that is common right, marriage out of the caste, anti-dowry law, and then Baba Sahib Ambedkar sees that how the share in the property can be given, then consent has to be taken. महिला की सहमति, गोद लेने में भी महिला की सहमति, ये जो पूरे के पूरे महिला अधिकार थे बाबा साहब अम्बेडकर के, और उसके पहले कि जो गर्भवती महिला है उसको लीव, मैटरनिटी लीव शुड बी गिवन टू हर, दैट वाज ए ह्यूमन राइट. And then also Baba Sahib said that no women should go in the mines to take out coal. And of course, that Baba Sahib Ambedkar's right to equality before law, that is 14, 15, and 15E. These are all rights which creates a developmental perspective in the Baba Sahib Ambedkar's understanding, and that provides social justice to people, those who were relegated to periphery. So, friends, when we are trying to do research, I think we have to keep in mind the source and foundation of knowledge, the referential knowledge, the perspective knowledge, his personal experience, and the framework, the broader framework in which Baba Sahib Ambedkar. Therefore, we should not reduce Baba Sahib Ambedkar only to an activist. We should not reduce only Baba Sahib Ambedkar that he is only studied caste. उन्होंने केवल जाति का अध्ययन नहीं किया है, वो केवल दलित लीडर नहीं है, वो बाबा साहब अम्बेडकर एक रिसर्चर है, सोशल साइंटिस्ट रिसर्चर. हम लोगों को कम से कम विश्वविद्यालय विधा में और those who are involved in academics, they should be basically considering that these types of interaction and interrelationship with Baba Sahib Ambedkar is very, very important. So I think I should stop here, and I hope that I have covered the epistemology and methodology of Baba Sahib Ambedkar's thought and philosophy. Thank you very much.